اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ فَخَلَفَ قَوْمٌ فِي اقْتِدَائِهَا إِيَّاهُ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا بےشماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے ثم کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا اپنے بھائیوں کو کہ ثم حرف عطف ہے، تین چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک تشریک در حکم یعنی معطوف علیہ کے حکم میں شریک ہے، نمبر ایک معطوف علیہ کے حکم میں شریک، نمبر دو ثم ترتیب کا فائدہ دیتا ہے، نمبر تین یہ تھا کہ ثم میں مہلت ہوتی ہے۔ مثال یہ دی تھی آپ کو جاء زید ثم عمر، اس کے اندر تین چیزیں ثم سمجھا رہا ہے۔ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عمر ہے ثم کے بعد یہ عمر پہلے والے حکم میں شریک ہے، یعنی آنے کے حکم میں معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک ہے، معطوف علیہ کے حکم میں شریک ہے۔ وہ کیا ہے؟ آنا جاء زید آیا ثم عمر پھر عمر آیا، یعنی عمر جو ہے وہ اس آنے والے حکم میں شریک ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے ثم میں کہ ترتیب سمجھا رہا ہے، پہلے زید آیا ہے جاء زید ثم عمر پھر عمر آیا ہے۔ اور تیسری چیز جو ثم یہاں سمجھا رہا ہے وہ مہلت ہے کہ زید آیا ہے پھر کچھ مدت گزری ہے، فاصلے کے بعد عمر آیا ہے، پس ثم کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک تشریک ہے حکم میں، نمبر دو ترتیب، نمبر تین مہلت، یہ تین چیزیں تھیں۔ اور پھر عرض کیا تھا بھائیوں کو کہ جو تشریک ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ ثم اس شرکت والے حکم سے کہ معطوف علیہ والا حکم ہے، اس میں کبھی کبھی تخلف کر جاتا ہے۔ معطوف علیہ کے حکم میں شریک ہو اور یہ بات ثم سمجھا رہا ہو، اس سے کبھی کبھی نافرمانی ہو جاتی ہے، تخلف ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس میں تشریک ثم میں نہیں ہوتی، ثم تشریک کو نہیں سمجھاتا، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیا مجیدہ پڑھی تھی حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم جواب اذا کا تھا، اذا ضاقت کا جواب تھا، ثم تاب علیہم جب یہ اس کا جواب تھا، تو ثم جو ہے وہ کیا ہے؟ ثم حرف عطف ہے اور یہ جواب پر نہیں آتا۔ ثم حرف عطف ہو تو یہ جواب پر نہیں آتا، پس یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ثم زائدہ ہے، جب ثم زائدہ ہو گیا تو تشریک بھی پھر نہ ہوئی۔ تو اس کا آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم نے جواب دیا تھا، جواب یہ دیا تھا کہ میرے بھائیو اذا کا جواب، اذا ضاقت کا جواب ثم تاب نہیں ہے کہ آپ کہو ثم جو ہے وہ جواب کے ساتھ نہیں آتا ہے، ثم حرف عطف ہے اور وہ جواب کے ساتھ نہیں آتا ہے، ثم تاب جواب اذا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ جواب اذا کا ثم سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور پھر آگے ہونا چاہیے تابو ثم تاب علیہم، تابو ثم تاب علیہم، وہ اذا کا جواب تابو ہے جو کہ محذوف ہے۔ یہ سابقہ بحث تھی،
آج دوبارہ تھوڑا سا تکرار کیا ہے تاکہ مطلب آج کا آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ دوسرا ہم نے یہ کہا کہ سما کے اندر ترتیب پائی جاتی ہے، مثال دے کر سمجھایا ہے۔ آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سما کبھی ترتیب پہنچانے میں تخلف کر جاتا ہے، سما کے اندر ترتیب نہیں ہے۔ دلیل دے رہے ہیں کہ سما کبھی کبھی ترتیب سے مخالفت کرتا ہے، یعنی کبھی سما میں ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ دلیل خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجہا، یہاں جو سما آ رہا ہے اس میں ترتیب نہیں ہے، سما ترتیب کو نہیں پہنچا رہا ہے۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ توجہ فرماؤ، خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحد، نفس واحد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، ثم جعل منها زوجا، پھر اس نفس واحد سے اس کی زوج کو قرار دیا یعنی حضرت حوا کو۔ تو یہ ترتیب نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان خلق ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد آیت تو یہ کہہ رہی ہے زوجہ، پھر اس کی زوجہ کو خلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا سما ترتیب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ترتیب یہ ہے پہلے خلقت حضرت آدم علیہ السلام ہے، پھر حضرت حوا ہے، پھر اس کی فرزندان اور اس کی اولاد ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ خارج میں ایسا ہے کہ پہلے آدم کی خلقت ہے، بعد میں کس کی ہے جی؟ حضرت حوا ہیں، اور اس کے بعد ان کی اولاد ہے۔ جبکہ آیت سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے حضرت آدم کی خلقت ہوئی ہے، بعد میں فرزندان کی ہے، بعد میں حوا کی ہے، پس سما ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ توجہ فرمائی؟ تو یہ جو ہے ثم جعل منها کا جب ہم عطف کرتے ہیں خلقکم من نفس واحد ثم جعل منها، ثم کا عطف کہاں ہو رہا ہے؟ خلقکم پہ۔ جب ایسا کریں گے تو پھر یہ بات ہے کہ یہ سما ترتیب کے لیے نہیں ہے، سما ترتیب پہنچانے میں تخلف کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ کیسا؟ دوبارہ سنو، آیت کیا کہتی ہے؟ خلقکم من نفس واحد، خلقکم، تم کو پیدا کیا، تم یعنی انسان، من نفس واحد، نفس واحد حضرت آدم سے، ثم جعل منها زوجا، پھر خلقکم پہ عطف کرنا ہے ثم کا، ثم خلقکم، ثم پھر کیا ہے؟ جعل منها زوجا، پھر اس نفس واحد سے اس کی زوجہ کو خلق کیا۔ تو آیت میں تو یہ بن رہا ہے کہ حضرت نفس واحد حضرت آدم کی خلقت ہے، پھر انسان کی ہے یعنی فرزندان کی ہے، اور اس کے بعد جناب حوا خلق ہو رہی ہیں۔ کوئی خارج میں یہ ترتیب ہے؟ یہ تو ترتیب نہیں ہے نا، آیت تو اس طرح بتا رہی ہے، جبکہ ترتیب ہے پہلے حضرت آدم ہے، پھر حضرت حوا ہے، پھر اس کی اولاد ہے۔ آیت میں یہ نہیں ہے، پس نتیجہ لیں کہ سما ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور قول ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان من سادہ ثم صادبو ثم قد صادق قبل ذلك جدہ، پس بے شک من سادہ، جو آدمی من سادہ سردار ہوا، پھر اس کا باپ سردار ہوا، اس نے شخصیت پیدا کی، ثم قد قبل ذلك، پھر اس کے باپ سے پہلے اس کا جد سردار تھا، ٹھیک ہے۔ جبکہ توجہ فرمائیے، جبکہ آپ جانتے ہیں خارج میں پہلے دادا کی شخصیت ہوتی ہے، پھر باپ کی، باپ کے بعد بیٹے کی شخصیت ہے، یہ ترتیب ہے، پہلے دادا پھر باپ پھر بیٹا، یہ ترتیب ہے سیادت میں۔ یہ پہلے بیٹے کو بنا رہا ہے سردار شیر، پھر باپ کو، پھر جد کو بنا رہا ہے باپ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہ اس شعر جو ہے اس میں بھی سما ترتیب کے لیے نہیں ہے۔
तवज्जो फरमाई। पहले भी इसको दोहराया था, आज फिर दोहराया है इस मतलब की खातिर जो मैं अभी बयान कर रहा हूं। जवाब दिया गया इस आये मजीदा से, तकरीबन 3 जवाब दिए गए हैं, 3 जवाब दिए गए हैं आये मजीदा से। भाई कौन सी आये मजीदा? खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदिन सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा, ये जो हमने कहा है ये आये मजीदा, ये जनाब आली तरतीब को नहीं समझाती है। इस आयत के अंदर तरतीब नहीं है, क्योंकि इस आयत में तो आदम की औलाद की खिलकत हवा से पहले हो रही है, जबकि जनाब हवा की खिलकत पहले है। फिर तो इसका हम क्या करें? ये नहीं गोया कि सुन्ना पस तरतीब के लिए नहीं है, ये साबित किया है हमने आयत में। अब हम जवाब देना चाहते हैं, इस आयत मजीदा से 3 जवाब दे रहे हैं, और उस जवाब से हम क्या साबित करना चाहते हैं? इस बात को साबित करना चाहते हैं कि सुन्ना तरतीब के लिए है। इस आये मजीदा में जो पड़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिद सुम्मा जअल मिन ज़ौजहा में सुम्मा तरतीब के लिए है। आयत के में हम 3 जवाब दे रहे हैं, आयत के हम 3 जवाब दे रहे हैं कि सुम्मा तरतीब के लिए है। तवज्जो तवज्जो अजीजो, ठीक है, कि सुम्मा किसके लिए अजीजो? तरतीब के लिए है। वो क्या देंगे? हम ये कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा का अत्फ खलक़कुम पे नहीं है। सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा का अत्फ अगर खलक़कुम पर हो तो तरतीब गड़बड़ कर रही है। हम कहते हैं ना, तवज्जो, सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा का अत्फ खलक़कुम पर नहीं है, खलक़कुम पर इसका अत्फ नहीं है, बल्कि एक महजूफ पर इसका अत्फ है। सुम्मा जअल का अत्फ एक महजूफ चीज पर है। वो महजूफ क्या है? महजूफ ये है, ठीक है, यानी मैं क्या कह रहा हूं, सुम्मा जअल का अत्फ एक महजूफ पे है। वो क्या है? खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदिन अंशअहा, अंशअहा, ये अंशअहा, अंशअहा सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा। जब ऐसा एक माज़ूफ पर अगर अत्फ करते हैं, जअल का अत्फ अंशअ पे करते हैं, तो फिर तरतीब निकल आती है, फिर तरतीब निकल आती है। कैसे? खुदा जैसे, तवज्जो करो, अल्लाह तख़लक़कुम, अल्लाह ताला ने तुमको नफ्से वाहिद से पैदा किया। नफ्से वाहिद, तवज्जो, नफ्से वाहिद जिसकी सिफत यह है कि उसको ईजाद किया, नफ्से वाहिद की सिफत यह है कि उसको ईजाद किया, और उसकी यह भी सिफत है कि उसको क्या किया? यह भी सिफत है कि उसके बाद उसकी ज़ौजा को खल्क किया। दोबारा सुनो, सुम्मा जअल का अत्फ हो रहा है अंशा एक माजूफ पे, तो माना हम ये कह रहे हैं खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदिन, अल्लाह ने तुमको नफ्स वाहिद से पैदा किया। नफ्स वाहिद की सिफत क्या है? अंशअहा, कि उसको ईजाद किया, और फिर उसकी दूसरी सिफत यह है, ठीक है, कि उससे उसकी ज़ौजा को खाल्क किया। जब ऐसा हो गया तो तरतीब निकल आई। ये पहला जवाब है, सुम्मा तरतीब के लिए है या नहीं। जब सुम्मा जअल का अत्फ एक माजूफ कलमा जो पीछे अंशअहा है उस पर करेंगे तो तरतीब फिर है, ठीक है। दूसरा जवाब अजीजो, दूसरा जवाब वो ये है कि अत्फ जो हो रहा है वो वाहिदा पर हो रहा है, अत्फ वाहिदा पर है।
खलककुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिनहा, सुम्मा जअल का अर्थ किस पे है? इस वाहिदतिन पे है, वाहिदतिन पे अर्थ हो रहा है। सवाल होगा वाहिदा मुफरद है, सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा जुमला है, जुमले का मुफरद पर अत्फ कैसे कर रहे हो जी? तो जवाब ये दे रहे हैं कि अत्फ वाहिदा पर है, लेकिन वाहिदा को फेल की तावील में किया है, फेल की तावील में है, यानी मिन नफ्सिन तवहदत, वाहिदा यानी तवहदत, सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा। अगर इस तरह करें फिर भी सुम्मा तरतीब के लिए है। दूसरा जवाब भला क्या दे रहा हूं? दूसरा जवाब ये है सुम्मा जअल मिनहा का अत्फ वाहिदा पे है। भाई वाहिदा मुफरद है, तावील करते हैं जुमला में तवहदत सुम्मा जअल, ठीक है। जब इस तरह करोगे, वाहिदा पे अत्फ करोगे तो फिर भी सुम्मा तरतीब के लिए है। माना कैसे बनेगा फिर? अल्लाह ताला ने तुमको एक नफ्स से पैदा किया, अल्लाह ताला ने खलककुम मिन नफ्सिन वाहिद, अल्लाह ताला ने तुमको नफ्स से पैदा किया जिसकी सिफत ये है, और नफ्स की तवहदत ए इनफरदत, जो मुनफरिद था। अल्लाह ताला ने तुमको एक नफ्स से पैदा किया जिसकी सिफत ये थी कि वो मुनफरिद था, फिर उसकी ये भी सिफत थी कि क्या किया? खाल्क किया उस नफ्स से उसकी ज़ौजा को। अल्लाह ताला ने तुमको एक नफ्स से पैदा किया, उस नफ्स की सिफत क्या है? कि वो मुनफरिद था, फिर उसकी ये भी सिफत थी कि उस नफ्स से उसकी ज़ौजा को पैदा किया। ये दो जवाब हो गया जान। तीसरा जवाब हमारा ये है कि सुम्मा सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा का अत्फ खलककुम मिन नफ्सिन पे है, लेकिन तरतीब दो किस्म की होती है। एक होती है तरतीब हुक्मी और एक होती है तरतीब अखबारी, खबर देने में यहां तरतीब हुक्मी नहीं है, यहां तरतीब हुक्मी नहीं है, बल्कि खबर देने वाली तरतीब है। खबर में वो जो खबर दे रहा है उसने ये तरतीब रखी है, ठीक है। खबर देते हुए कहा है कि खलककुम मिन नफ्सिन वाहिदिन, तुमको पैदा किया एक नफ्स वाहिद हजरत आदम से। फिर दूसरी खबर देता हूं कि फिर उस नफ्स वाहिद से उसकी ज़ौजा को खल किया। यहां तरतीब हुक्मी नहीं है ताकि कहो इश्काल है, तरतीब अखबारी है। ये हमारा है तीसरा जवाब। तीसरा जवाब समझे या नहीं? तरतीब की दो किस्में हैं, एक होती है तरतीब हुक्मी, दूसरी होती है तरतीब अखबारी। तरतीब हुक्मी में ये होता है कि मातूफुन अलैह का एक हुक्म है, वो पहले है, उसके बाद मातूफ का हुक्म है, ठीक है। मातूफुन अलैह का हुक्म, बाद में मातूफ का हुक्म है और उसमें तरतीब है। जबकि यहां ये मुराद नहीं, बल्कि तरतीब खुद खबर देने में उसने पहले उसको रखा, फिर उसके बाद दूसरी खबर दे रहा है, खबर देने में है। तरतीब अखबारी है, यहां हुक्मी नहीं है, ठीक है। जैसे ना मिसाल दूं तरतीब हुक्मी की, बलगनी मा सनाता अलियम सुम्मा मा सनाता हमसे आजबू, मुझे खबर मिली है जो तूने आज किया है ना काम, जो आज किया वो मुझे खबर मिली है, फिर जो तूने कल किया था वो अजीब है। देखो जो कल वाला है उसको सुम्मा के बाद ला रहा है, ये क्या है? कल वाला काम पहले होना चाहिए ना, फिर आज का बताता, लेकिन पहले आज का बताया फिर कल का बता रहा है, क्योंकि ये खबर इस तरह की दे रहा है। तरतीब अखबारी में ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बल्कि खबर में तरतीब है, पहले इसकी खबर देगा फिर उसके बाद दूसरे की खबर दे रहा है, ठीक है जी जनाब अली। तो आया मजीदा के अंदर जो कह रहे थे सुम्मा तरतीब के लिए नहीं है, हमने तीन जवाब देकर अजीजों साबित कर दिया है कि सुम्मा तरतीब के लिए है। तीन जवाब हमने दिए और तीन जवाब से यह साबित कर दिया कि सुम्मा तरतीब के लिए है। अब आवाजान सवाल, इन तीनों जवाबों में सबसे अच्छा कौन है?
फरमाते हैं पहले दो जवाब इन तीन में पहले दो ज्यादा नाफे हैं, क्योंकि वो तरतीब को भी ठीक करते हैं, मोहलत को भी ठीक करते हैं। पहले दो जवाब ज्यादा नाफे हैं, लेकिन जवाब आखिरी एक एतबार से आम है, क्योंकि उस आखिरी जवाब जो कहता है तरतीब अखबारी है, उसके जरिए से आप उस शेर का इन्नमन साद सुम्मा सादा से भी जवाब दे सकते हैं। आखिरी जवाब ऐसा है कि उसके जरिए शायर के शेर से भी जवाब दे सकते हैं। ठीक हो गई बात अजीजों? जी जनाब अली। इसके बाद आए इब्ने उसफूर ने उस शायर के शेर का जवाब दिया है कि जनाब कोई मसला नहीं है, आप कहते थे तरतीब नहीं है शायर के शेर में कि पहले एक शख्स सरदार हुआ है, फिर बेटा सरदार, पहले एक शख्स सरदार हुआ है, फिर उसका बाप सरदार हुआ है, फिर दादा, तो कहते हो ये तरतीब नहीं, तरतीब होती है पहले दादा सरदार होता है, फिर बाप होता है, फिर बेटा होता है। आप ये कहते हो बस तरतीब नहीं है। इब्ने उसफूर कहता है नहीं, कोई मसला नहीं है। ऐसा भी होता है कि दादा की सरदारी बाप से और बाप की सरदारी बेटे से हो, दादा सरदार बन रहा हो बाप की वजह से, और बाप सरदार बन रहा हो बेटे की वजह से, ऊपर से नीचे दादा सरदार है इस बंदे के बाप की वजह से और बाप सरदार है इस बेटे की वजह से। कैसे भला? मिसाल दी गई है कि जैसे हजरत अब्दुल्ला जो पैगंबर अकरम के बाप हैं और पैगंबर अकरम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जो शराफत मिली है वो पैगंबर अकरम की वजह से है। ठीक है, तो हो सकता है बेटा आगा बने, फिर बेटा जो है उसके बाद बाप हो और बाप के बाद दादा हो सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है। और फिर एक वो मोहलत वाली बात, फरार ने गुमान किया है कि सुम्मा कभी मोहलत से तखल्लुफ कर जाता है, क्योंकि आजबनी मा सनाता अलियुम सुम्मा मा सनाता हमसे आजबू, ये अखबार है और अखबार में तरतीब और मोहलत नहीं होती है। ठीक है, पर सुम्मा मोहलत पहुंचाने में भी तखल्लुफ कर जाता है। क्या कहा जान, एक मरतबा फिर सुन लें, बेहतर है, फिर मैं तर्जमा करता जाऊंगा। जहाँ थोड़ा मतलब दकीक होता है, कोशिश होती है कि थोड़ा आहिस्ता करके पढ़ूं और आपकी खिदमत में ये बात समझा दूं। भाइयों, बात हमारी क्या चल रही थी? बात हमारी चल रही थी सुम्मा के बारे में थी, ऐसे है या नहीं? सुम्मा का तीन चीजें समझाता है। ठीक है, उसमें तशरीक होती है, हुक्म में तरतीब होती है, मोहलत होती है। फिर कहा कभी कभी तशरीक नहीं होती, जवाब दे दिया। फिर आज की बहस में था कि तरतीब से भी कभी सुन्ना मुखालफत कर जाता है। आया मजीदा पढ़ी थी और फिर शायर का शेर पढ़ा था जिसमें तरतीब नहीं थी। फिर आज आगे हमने ये किया, उस आए मजीदा के कितने जवाब दिए हैं जी? तीन जवाब हमने दे दिए हैं। आइए तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा तरतीबो फखालफा कौमुन फी इक्तिज़ाइहा इय्याहु तमस्सुकन बिकौलि खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजा। तरतीब फखालफा कौमुन, कौम ने मुखालफत की है, फी इक्तिज़ाइ इय्याहु कि सुम्मा जो है इय्याहु तरतीब का फायदा दे, कौम ने मुखालफत की है। दलील तमस्सुकन बिकौलि, अल्लाह ताला के कौल से तमस्सुक करते हुए, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजा, उस अल्लाह ने तुमको एक नफ्स वाहिद हज़रत आदम से पैदा किया, फिर जअल मिनहा ज़ौजा, फिर उससे उसकी ज़ौजा को पैदा किया। व कौल अबी नवास इन्ना मन सादा सुम्मा सादा अबू सुम्मा कद सादा क़ब्ल ज़ालिका जद्दू, बेशक मन सादा कोई आदमी सरदार हुआ, उसने शख्सियत पैदा की, सुम्मा सादा अबू, फिर उसके बाप ने शख्सियत पैदा की, सरदार हुआ। सुम्मा कद सादा क़ब्ल ज़ालिका जद्दू, फिर उसके बाप से पहले उसका जद सरदार था। वल जवाब अनिल आयत मिन वुजूहिन, आयत से जवाब चंद वजूह से है। तीन जवाब दिए हैं आयत के सुम्मा तरतीब के लिए है। मिनहा, उन जवाब में से, उन वजूह में से एक ही है अन्ना लत्फ अला माज़ूफिन, आत्फ जो है माज़ूफ पर है। किसका? सुम्मा जअल का आत्फ
सुम्मा जाअला का अत्फ करते थे खाला का पे तो गलत हो जाता था, तरतीब नहीं थी। अब हम कह रहे हैं अत्फ अला माज़ूफ, अत्फ माज़ूफ पे है। मिन नफ्सिन वाहिदतिन अंशअहा, नफ्स वाहिद अंशअहा, जिस कोई सिफत ये है कि उसको क्या किया, उसको ईजाद किया। सुम्मा जाअला मिनहा ज़ौजहा, और उस नफ्स की दूसरी सिफत ये है सुम्मा जाअला मिनहा, फिर उस नफ्स वाहिद से उसकी ज़ौजा को पैदा किया। दोबारा सुनो, अल्लाह ताला ने तुमको नफ्स वाहिद से पैदा किया, जिसकी सिफत ही है कि उस नफ्स वाहिद को ईजाद किया, और उसकी यह सिफत भी है कि उस नफ्स वाहिद से उसकी ज़ौजा को पैदा किया। व मिनहा, उन वजूह में से एक ही है अन्नल अत्फ़ अला वाहिदा अला तावील या बिलफ़िल, अत्फ़ जो है ना सुम्मा जाअला का अत्फ़ वाहिदा पे है, वाहिदा अला तावील या बिलफ़िल, वाहिदा की तावील की है फ़िल में। ऐ मिन नफ्सिन तवाहदत, मिन नफ्सिन तवाहदत, वाहिदा से मुराद तवाहदत, ऐ इनफरदत सुम्मा जाअला मिनहा ज़ौजहा, खलक़कुम मिन नफ्सिन तवाहदत, अल्लाह ने तुमको पैदा किया नफ्स से जो कि मुनफरिद था, जो कि क्या था, मुनफरिद था, जिसकी सिफत ये थी कि वो तन्हा था। सुम्मा जाअला मिनहा ज़ौजहा, फिर उसकी ये सिफत है कि उससे उसकी ज़ौजा को खाल्क किया। दो जवाब हो गए। तीसरा मिन्ना अन्ना सुम्मा ले तरतीब अखबार लाल तरतीब हुक्म, सुम्मा तरतीब अखबार के लिए है, तरतीब हुक्म के लिए नहीं। वन्नहु युक़ालु बलगनी मा सनात अल-यौम सुम्मा मा सनात हमसे आजबू, कहा जाता है कि बलगनी मुझे खबर मिली है, मा सनात अल-यौम जो तूने आज किया है, सुम्मा मा सनात हमसे आजबू फिर तूने जो कल किया था आजबू अजीब तर है। ऐ सुम्मा उखबिरुका अन्नल्लज़ी सनातहु हमसे आजबू, फिर मैं आपको खबर देता हूं कि तूने जो कल किया आजबू अजीब तर है। तीन जवाब दिए हमने। वल अव्वलान अनफु मिन हाज़ल जवाब, पहले दो जवाब इस जवाब यानी जो आखिरी है तरतीब अखबारी वाला उससे ज्यादा नाफी हैं। क्यों? लिअन्नहुमा युसायान तरतीब वल मोहलता, क्योंकि वो पहले वाले दो जवाब लिअन्नहुमा वो अव्वलान पहले दो जवाब युसायान तरतीब वल मोहलता, वो तरतीब और मोहलत की इस्लाह करते हैं, उसको ठीक करते हैं। वहादा युसाय तरतीब फ़कत, वहादा ये तीसरा जवाब सिर्फ फ़कत तरतीब की तस्हीह करता है और उसको ठीक करता है। क्यों? इदला तराखी बैन अखबारैन, चूंकि अखबारों के दरमियान तराखी नहीं है, मोहलत नहीं है, ताकि हम कहें कि इसमें वो मोहलत वगैरह है। वलकिन जवाब अल अखीर आम, लेकिन एक एतबार से आखिरी जो जवाब है तरतीब अखबारी वाला वो आम है। क्यों? लेन्नहु यसीउ अन युजाब बिही अनिल बैत अज़न, ये जवाब इसीउन लेन्नहु तीसरा जवाब सही है कि उसके जरिए जवाब दिए जाए अनिल बैत अज़न, बैत से भी शेर से भी जवाब देना सही है। व अजाबा इब्नु उसफूर अनिल बैत बे अन्नल मुरादा अन्नल जद्दा अताउ सौदा मिन किबलिल अब वल अब मिन किबलिल इब्न, इब्न उसफूर ने जवाब दिया है बैत से। इब्न उसफूर ने क्या कहा है? बे अन्नल मुरादा अन्नल जद्दा, मुराद ये कि जद जो दादा है अताउ सौदा उसको शख्सियत मिली है मिन किबलिल अब, बाप से उसको शख्सियत मिली है, वल अब मिन किबलिल इब्न, और बाप को सरदारी किससे मिली है? बेटे से मिली है। और इसकी मिसाल देते हैं पैगंबर अकरम के बाप हजरत अब्दुल्ला और उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की, कि उनको शराफत पैगंबर से मिली है। वह अम्मल मोहलत, अम्मल मोहलत, इसमें फरा कहते हैं कि सुम्मा कभी मोहलत का फायदा नहीं देता। वह अम्मल मोहलत फ़ज़अमल फराना कद ततखल्लफो, फरा ने गुमान किया है कि ये सुम्मा कभी तखल्लुफ करता है। बेदलील कौल का, दलील कौल का आपके इस कौल की मुताबिक आजबनी मा सनात अल-यौम सुम्मा मा सनात हमसे आजबू, आजबनी मुझे ताज्जुब है, मा सनात अल-यौम जो तूने आज किया मुझे ताज्जुब है, सुम्मा मा सनात हमसे आजबू फिर तूने जो कल किया वो अजीब तर है। लिअन्न सुम्मा फी ज़ालिका लितरतीब अल-अखबार, सुम्मा इसमें अखबार की तरतीब के लिए वला तराखी बैनल अखबारैन, और दो अखबारों के दरमियान मोहलत नहीं होती है, उसी वक्त वो खबर दे रहा है मोहलत ही
نہیں ہے، پس یہاں سما مہلت کا فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ مطلب ہمارا الحمدللہ یہ تمام ہوا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، وہ الگ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔